Our southern frontier is about to witness a transformative leap with the Great Nicobar project. Ports, airports, townships, power infrastructure. It aims to boost trade connectivity and defense capabilities. Strategically close to the Malacca Strait, the island is set to become a hub for maritime influence for India in the Indo-Pacific region. Now, while promising economic opportunities for the locals there in Andaman and Nicobar Islands, the project also faces scrutiny over environmental and tribal concerns. Mostly the opposition is opposing it, mostly Congress party. Our report on the long-form story takes you inside this ambitious endeavor, the Nicobar project, shaping India's maritime future. Today we are here at the southernmost frontier of India. This is Campbell Bay in Great Nicobar Island. Down south 70 kilometers from here is Indira Point, the southernmost tip of India. Government of India has big plans for this island. At the gateway of the Malacca Strait, Great Nicobar stands guard over one of the world's busiest sea lanes. Here, a mega infrastructure project worth over 80,000 crore rupees is set to change India's maritime landscape forever. Conceived by Niti Aayog in 2021, the project includes a port, dual-use airport, township, and a 450 MVA solar and gas power plant. It is developing a transformational project here. The project has 4 components to it. The first component is an international container transshipment terminal at Galathea Bay near Indira Point. The second component is a 450 MVA gas and solar based power plant. The third component is an international greenfield airport, and the fourth component is a township in more than 16,000 hectares of land. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी GNI प्रोजेक्ट जो लेकर आ रहे हैं, लगभग इनिशियल स्टेज में 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कंप्लीट होते होते ये 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। Great Nicobar is just 90 nautical miles from Indonesia's Sumatra, giving India a direct line to one of the busiest maritime trade routes, the Malacca Strait. For decades, India has let the strategic asset remain underutilized. इस परियोजना को तो एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी को ही बहुत पहले ला देना चाहिए था, बट जब उनकी नाकामी, जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी नाकामी है, तब वो इसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम ग्रेट निकोबार द्वीपवासी। GNI प्रोजेक्ट सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है मलाक्का स्ट्रेट के एकदम टिप पे है और प्रति 2 मिनट में एक कार्गो वेसल वहां से गुजरता है, जो कि मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए मलेशिया और सिंगापुर जाता है। पूरे भारत का 85% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंकन पोर्ट से हैंडल होता है। इससे भारत को एक बहुत ही बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है इस कार्गो को हैंडल करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के आने से भारत के एक्सचेकर से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का बचाव होगा। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, जो कि आज के डेट में पूरे देश में एक सुर्खियां बनी हुई है, तो ये देश के लिए सामरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और जहां तक रहा बात की युवाओं के रोजगार का, ये एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। More than 80% of India's transshipment cargo is currently handled by the port in Colombo or Port Klang in Malaysia or the port in Singapore. India having the strategic asset here as Great Nicobar Island, which is less than 200 kilometers from Malacca Strait, has not been able to develop a transshipment port here yet. Plans have been there since 1970s, but it has not materialized yet. Narendra Modi government has taken a firm resolve to develop an international container transshipment terminal here at Galathea Bay in Great Nicobar Island. The port will not only serve India's needs but also bring in essential foreign exchange. For locals, the project is not just about strategy,
It promises connectivity, jobs, and modern amenities. हमारे गांव में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हमारे गांव वालों को बहुत फ़ायदा होएगा। हमारे गांव को कोई जानता नहीं है, हमारे कैमल वे को कोई जानता नहीं है। ग्रेट निकोबार कहाँ है किसी को पता नहीं है। इससे कम से कम ग्रेट निकोबार के बारे में हम लोगों को जानकारी होएगी, पूरे भारतवर्ष को जानकारी होएगी। देखिए, हम चाहते हैं कि वो जो हमारा सर्कल रेट है जो अंडमान निकोबार में जो हमारे कैम्बल वे का है वो बहुत ही कम है। कम होने का कारण ये है कि आज तक वहाँ किसी प्रकार की कोई विकास परियोजना चालू नहीं हुई। अगर ये चालू होती है तो हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, जो श्री विजयपुरम जिसका अभी नया नाम है, इसके हिसाब से हमें यहाँ के वंडोर वगैरह जैसे जो यहाँ पर काफ़ी क्या टूरिज्म डेवलप हो चुका है, उस हिसाब से हमें वहाँ का सर्किल रेट सही से दिया जाए, ताकि हमें ऐसा कुछ ना लगे कि हमें इतने साल रहकर भी कुछ नुकसान हुआ है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें ठीक से मुआवजा दिया जाए, ज़मीन का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे नारियल का हो, सुपारी का, किसी का भी हो, हमारा उसी में उन्नति होगा, क्योंकि यह एक टाइम ही हमें मिल सकेगा। मैं कैम्बल बे का निवासी होने के नाते मैं पुनः एक बार जरूर यही कहूंगा कि कैम्बल बे में सेटलर हो नॉन सेटलर हो, इसको कोई भी विरोध नहीं कर रहा है और जल्दी से जल्दी इसको बनाने के लिए सब बोल रहे हैं। और उनका ये भी एक इंतजार है कि कब यहाँ पे ये काम शुरू होगा और कब हमें कोई रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ कमाने के लिए कुछ रास्ता बने। तो इसके लिए वो ईगरली वेट कर रहे हैं, बहुत ही इच्छुक हैं कि ये कब शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैं पूरे अंडमान जीएनए ग्रेट निकोबार आइलैंड के पूरे तमाम लोगों की ओर से मैं यही कहना चाहूंगा सरकार को भी कि जितना जल्दी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। ये जीएन प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे फिशरमैन कमेटी को आने वाला दिन फिश का जो भी यहाँ पे मिलता है लेकिन सेल नहीं हो पाता है। जब प्रोजेक्ट आने से यहाँ फिशरमैन कमेटी भाई लोगों को सबको यहाँ से बाहर कंट्री भी भेज सकते हैं, यहाँ से मछली पकड़ने का, और विदेशी में भी भेज सकते हैं इसको। तो जेएनई प्रोजेक्ट हम लोग चाहता है कि यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आना चाहिए। मैं खुशनसीबी सोचता हूँ और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस छोटे से द्वीप, जो इस आइलैंड को कोई नहीं जानता था, जो भारत का अंतिम छोर है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड, बहुत ही हमारा सुंदर सा एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप में हम 7000 के पॉपुलेशन, बस हमारा 7000 का एक छोटा सा पॉपुलेशन वाला द्वीप है। लेकिन आपको बताते हुए मुझे ये गर्व लग रहा है कि गर्व महसूस हो रहा है। हमारा कैम्बल बे जोग्राफिकली सिंगापुर से बड़ा है, हमारा लैंड सिंगापुर से बहुत ही काफ़ी बड़ा क्षेत्र में हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है। Even the ex-servicemen settlers who made this island home decades ago back the project. यहाँ पर जेट्टी जो बन रही है वो सबके लिए फ़ायदा होगा। हमारे लोग यहाँ से एक ही दिन में अपने मेनलैंड कहीं दिल्ली या कहीं कलकत्ता दूसरा जगह पहुँच जाएगा, अपने घर एक ही दिन में चले जाएगा। और वहाँ का बोर्ड यहाँ, वहाँ का जहाज़ यहाँ एक ही दिन में पहुँच जाएगा, 2-4 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये बन जाए बड़ी खुशी की बात है। In a recent editorial, Congress leader Sonia Gandhi called the Great Nicobar project an ecological and humanitarian disaster. राहुल जी जाते हैं मलेशिया, उसी वक्त अलेक्जेंडर सेरस वहां पे मौजूद रहता है। ये तो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी 2 दिन के लिए घूमने जा रहा है, उसी वक्त एक ऐसा व्यक्ति जो जॉर्ज सेरस का पोता हो वहां पे मौजूद हो। ये लोग वहां पे बैठकर कंस्पायर करता है देश के खिलाफ और इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। Critics argue the project risks damaging 15% of the island's forest cover and affecting 2 tribal groups, the Nicobaris and the Shompen. अब ट्राइबल इश्यू को मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे 2 ट्राइब्स रहते हैं पूरे ग्रेट निकोबार आइलैंड में। एक शोम्पेन है और एक निकोबारी ट्राइब है। शोम्पेन ट्राइब जो है वो नोमैडिक ट्राइब है और वो जंगलों में रहता है। उनका जो कांग्रेस पार्टी जैसे कह रहा है, उनका पूरा लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि टोटल जंगल एरिया जो गवर्नमेंट जो है डी नोटिफाई कर रहा है 73 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके बदली में 76 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस नोटिफाई हो रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में, ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट में।
तो ये जो है 3 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है जो एग्जिस्टिंग जो ट्राइबल रिजर्व जो डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो और ये एरिया जस्ट एडजेसेंट साथ में जुड़ा हुआ एरिया, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग जगह पे नोटिफाई हो रहा है। तो इससे शोम्पेन ट्राइब्स पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ और भली भांति जानता हूँ जिस ट्राइबल्स के नाम लिया गया है शोम्पेन, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे कोई शोम्पेन समुदाय से लेना देना है ही नहीं। हमारा ट्राइबल शोम्पेन जो है उस एरिया में न रहते हैं और न उस एरिया में जाते हैं। अंडमान निकोबार के टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है 7000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट में जो अफेक्टेड एरिया जो है वो 130 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से भी कहा जाता है कि सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। वो जो 50 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सिर्फ 0.69 स्क्वायर परसेंटेज है। 0.69% जंगल कट जाए और पूरा देश का मानसून रुक जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है। लगभग 10 लाख लोगों की कॉलोनी बनने जा रही है। आज मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये सोनिया गांधी जी की गलती नहीं है, इसमें सोनिया गांधी जी के थ्रू विदेशी ताकतें खेल रही हैं। This island is as sleepy as it can be at this time. Behind me is the Campbell Bay port area. There are a few jetties here. These jetties are meant to service the local population. Apart from passenger and cargo ships, these jetties are also used by the defense forces for their needs. Apart from these jetties, despite the strategic location of Great Nicobar Island, this island doesn't have a major port. This island is located very close to the Malacca Strait. Malacca Strait is not even 200 kilometers from the tip of this island, that is Indira Point. Malacca Strait is a major passage which connects Indian Ocean to the Pacific Ocean. More than 30% of the world's trade passes through the Malacca Strait. Malacca Strait is also very important for China because the majority of China's trade also passes through the Malacca Strait. Great Nicobar project is a geopolitical game changer. India gains leverage over the Malacca Strait, a vital route for global trade and Chinese oil imports. Economically, the port will handle 14 million TEUs of cargo annually. India's reliance on foreign ports raises national security issues. GNI Galathea Bay Port Project aims to counter the vulnerabilities that Indian trade faces today. The Great Nicobar project stands at the intersection of strategy, development, and ecology. While debate continues, India is moving forward, securing its southern frontier, empowering local communities, and asserting its place in the Indo-Pacific.